Mechanical Engineering, present here to entertain you as a student coordinator of today's session organized by Institutions Innovation Council IIC SIRT. I welcome you all for attending this wonderful session, which is full of knowledge. The title of today's session is Intellectual Property Rights Key Issues in Indian Context. Having knowledge about intellectual property is very important as they help in safeguarding the creation or invention of an author or an inventor. To throw more light on this topic and to discuss key issues in Indian context, we have our esteemed guest and eminent speaker of today's session, Vikas Hasawat sir. Now, I would like to request Dr. Ishad Ahmed Khan sir to give a brief introduction of our guest and eminent speaker of today's session. Thank you, Ans. So, one and all present here, very heartily welcomes to you all and good afternoon. Dr. Ishad Ahmed Khan, uh, uh, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering and IPR and Area Coordinator IIC SIRT Bhopal, welcome you all. So, um, just brief about the IIC. So IIC Institutions Innovation Cell, SIRT, directly associated with the Innovation Cell, MHRD, and our prime objective is to be stabilize the entrepreneurial and innovative ecosystem in our institute, and we are doing well under the able leadership of our President Dr. P.S. Rajput and our head of institute, Sri Dr. Rajiv Srivastava and convener Dr. D.K. Kohli. So now I would like to be brief intro to the today eminent speaker, Sri Vikas Asabat. And Sri Vikas Asabat is alumnus of Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, IIT Kharagpur. He is also earned Master of Intellectual Property Law. He is a qualified patent attorney and registered with the Patent Office, Government of India. He is a practicing an advocate and patent trademark attorney, regularly dealing with the patent, including PCT application and consultancy into the foreign filing trademark, including conventional application, design, copyright, and all things, regularly dealing with the consultancy assignment on IPR at the industry as well as from the academia. He also has nominated to the participate in the University of Washington Law School, National University, WB National University to the Judicial Science Innovation in the Indian IP Teaching and Research Workshop 2013. In April 2013, he has also nominated for 4-day residential course on how to engage in the Indian broadband policy and regulatory processes at the Bangalore, organized by LIRE Asia and Indian Journal of Law and Technology. And he is also the panelist of expert in the panel of Institutes Innovation Council, NIT Raipur. So Dr. Asabat has also remained the project officer, Intellectual Property Facilitation Center, Chandigarh for 1.5 years. He is also 4 journal publication, 4 conference proceeding or various IPR issue, and concept behind article in the newspaper and newsletters. He is also already delivered around 180 specialized lecture and training program on intellectual property right and cyber law in the various institutions and national and international reputed and industrial association. So this is a brief about Mr. Vikas Asabat. He's having all IPR related activities in with his expertise on that. So now I back to the Ans Malviya. Ans, Thank you, are you sir, having for your yes, sir. Thank you, sir, for your brief enlightenment.
Before taking a deep dive into the topic, I would like to share a short video to give a brief introduction about the SAGE group. दीजिए सर. Do you have video, Sir, actually, Vikas Sawat sir has shared his screen, so I am unable to share the video. Okay. Okay. Yeah. I'm just removing. Okay. Now okay. Thank you, कर thank you, दीजिए. sir. Yes, thank you, sir. And now, without waiting for another moment, I request our esteemed guest and eminent speaker of today's session, Vikas Hasawat sir, to please take the charge.
and enlighten us with your wonderful words. सर स्लाइड विजिबिलिटी आ रही है सर आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. फुल स्क्रीन विजिबिलिटी आ रही है ना? Yes, Yeah, sir. yeah, sir. Yes, sir. चलो गुड, चलो इट्स गुड. अच्छा नाउ गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सभी टीचर फैकल्टी में सीनियर फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स का बहुत बहुत मेरी तरफ से एक वार्म वेलकम. और टुडे सेशन इज बेसिकली वी विल रिलाई मोर ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. आईपीआर में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स काफी सारे हैं, लेकिन बट मैंने जो प्लान किया है सेशन का वो इस तरह से किया है कि आप लोग ज्यादा समझ सकें प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है इसमें और किस तरह से इनको हैंडल करना है. ओके, सो 1 सेकेंड. सो सबसे पहले तो आप देखिए फर्स्ट स्लाइड, जो अपना टॉपिक है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी. जैसे कि you say that your car is your property, your house is your property, okay, your laptop is your property, your mobile is your property. In the same way, whenever you develop a new design of an article, whenever you write some paragraph, some literary work, some scientific work, whenever you have a distinctive mark, or whenever you create a new invention, then that particular aspects can be your property. So that's why the name is intellectual property rights, because it creates out of your mind. Whenever you develop an invention, you have to apply mind, how to make this innovation, how to bend this pipe, how to fit the rivets. So whatever you do new things, you have to apply your mind. Secondly, whenever you do a new design, suppose you are changing the shape of a pen, you have to think how to change the shape, whether it can be rectangular shape, whether it can be circular shape, whatever it is. So whatever aspects you are using in these property, you have to apply your mind, you have to put your creativity into the place. That's why the name intellectual property rights. And since it's a property, means government of India, like you are seeing in the slide, आप slide पे देख सकते हैं कि कुछ certificates display हो रहे हैं. So certificates means Government of India recognize your trademark, your copyright, your patent, your design as a property. If you register it, and if someone copy the same or similar concept, then you can put a complaint before the government office or before the police, whatever the case. So अभी intellectual property rights का concept काफी serious है, it is applicable. So थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसको कैसे protect करना है, कैसे इसको file करना है, that is very important. तो आप लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सर्टिफिकेट इशू जी. So there is a provision of issuing of certificate for these intellectual property rights. देख रहे हैं आप लोग, ये देख पा रहे हैं. अब सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ देखेंगे चारों के बारे में, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड डिजाइन के बारे में ब्रीफ हम लोग थोड़ा देख के आगे बढ़ेंगे. अब ट्रेडमार्क्स के बारे में थोड़ा देखते हैं. आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, देयर आर 3 packets on the left and 3 packets on the right? And if you visualize it properly, you will see that one is Monaco, one is Krakow. So, and the one is hide and seek, other is peekaboo, so seek and peek. Then one is crackjack, one is cracker king, right? And see the packaging style, it is almost same. Monaco and Krakow yellow color with the round shaped biscuit, hide and seek and peekaboo blue color, okay, blue color with the same packaging style, and crackjack and tasted it in the almost yellow and golden color in the same packaging style. So if you see the other products, that is Krakow, peekaboo and cracker king, तो आप लोग identify कर सकते हैं कि these are motivated from the Monaco, hide and seek and crackjack, that they adopted the same similar packaging. और जब तीनों पैकेजिंग में सिमिलरिटी आ रही तो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि सर इट्स अ कोइंसिडेंस, इट मींस इट इज इंटेंशनल कॉपिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ. तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यू कैन सी, एक मिनट 1 सेकंड मेरे को थोड़ा ओपन करने दीजिए स्लाइड्स को.
तो जैसे कि मैं एक डॉक्टर दिनेश कोहली सर से थोड़ा बातचीत करता हूँ इस बारे में। सर आप देख रहे हैं कि मोनेक ये जो पैकेजिंग है सिमिलर है, जी जी तो आपको क्या लगता है एक कॉमन पर्सन, एक 10 साल का बच्चा है या फिर एक सीनियर सिटीजन है, अगर मार्केट में जाता है और ये चीजें देखता है, पीकबू, क्रेको किंग और जो भी है क्रैको, इसको देख के ही कैन कंफ्यूज दैट दीज आर द पार्ले प्रोडक्ट्स, इज इट? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली है ना, इट में क्रिएट अ कंफ्यूजन। सो इन सब चीजों को रोकने के लिए ट्रेडमार्क लॉ इन प्लेस है आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये ट्रेडमार्क डिस्प्यूट्स में आता है। अब लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, अब चूंकि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट लॉ आर इन प्लेस, दे आर एनफोर्सेबल, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि क्रैको, पीकबू और क्रैकर किंग को अपना पैकेजिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि इतना, और सारे प्रोडक्ट मार्केट से वापस उनको मार्केट से सारे प्रोडक्ट विड्रॉ करने पड़ेंगे। तो सारे डीलर्स को बोलना पड़ेगा, सारे रिटेलर्स को बोलना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट विड्रॉ कीजिए। तो इट्स अ वेरी risky thing. Once you enter into the zone of infringement, then it's very difficult thing to manage the things. ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए हमें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि स्पेलिंग थोड़ी डिफर है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, मेरा कलर थोड़ा सा डिफरेंट है तो काम चल जाएगा, क्योंकि ट्रेडमार्क में सिमिलरिटी ओवरऑल देखी जाती है, इन पार्ट्स नहीं देखी जाती। इट इज सीन एज ओवरऑल, राइट? तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखें नेक्स्ट स्लाइड, दिलीप सर आप भी देख सकते हैं, डेटोल और डेवटोल। सो एक कॉमन पर्सन विद अ ग्रीन सिंबल, विद अ राउंड सर्कल, विद अ प्लस साइन, एक कॉमन पर्सन कैन इजीली कंफ्यूज। जल्दीबाजी मार्केट जा रहे हैं, फटाफट सामान लेके घर पहुंचना है, रात हो गई, अंधेरा है, थोड़ा दिख कम रहा है, तो देयर में भी कंफ्यूजन, यू कैन बाय अ रॉन्ग प्रोडक्ट। लेकिन जब कंपनी को जब नोटिस होता है कि इस तरह के रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट में, तो दे गो टू कोर्ट और दे गो टू पुलिस। तो यहाँ पर ये दिल्ली हाई कोर्ट गए, डेटोल जो रैकेट बैंक की सर एक कंपनी है, तो मार्केट गए, मतलब सॉरी हाई कोर्ट गए और उन्होंने स्टे लिया डेटोल के अगेंस्ट। तो यू कैन सी इट इज, हाई कोर्ट ने पेनल्टी भी लगाई है और बोला है कि आप अपने प्रोडक्ट मार्केट से विड्रॉ कर लीजिए। तो द अदर कंपनी मोहित पेट्रोकेमिकल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट विड्रॉ कर लिए हैं। और अब नाउ यू सी आफ्टर दिस कोर्ट ऑर्डर, देयर प्रोडक्ट इज डेवटाइजर। So now they are forced, मतलब उनको कंपल्सन हो गया कि अपना प्रोडक्ट का मार्केट ब्रांड चेंज करना है। अब वो डेवटाइजर, अब डेवटाइजर डिफरेंट फ्रॉम डेटो। सो इस तरह से एक बैलेंस बना हुआ है थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स, थ्रू ट्रेडमार्क एक्ट, कि कोई इस प्रोडक्ट को कॉपी ना करे। अब नाउ सी प्योरवेल एंड प्योरवेल, दीज आर आल्सो सिमिलर। सो अब मतलब ये सब चीजों को हमें रोकना है ट्रेडमार्क एक्ट के थ्रू। और अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में अपने आप को सोचता है कि मेरी स्पेलिंग डिफरेंट है, मेरा थोड़ा सा गेटअप चेंज है, तो मोर और लेस ओवरऑल सिमिलरिटी और ओवरऑल रिकॉग्निशन देखी जाती है, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है हमको इन चीजों से बचना है हमें। हमारा चाहे एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोले, चाहे कोई अपना ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट खोले, हमें अपना ब्रांड ऐसा रखना है कि किसी से सिमिलर ना हो। अब एक बहुत बड़ी कंपनी है BMW, बाइस्चर मोटर कंपनी, ओके, मोटर वर्क्स, जर्मन कंपनी है। एक इंडियन काउंटर पार्ट ने एक अपना ई रिक्शा, जो आप लोग आजकल ई रिक्शा जो चलते हैं आजकल, है ना, लोडिंग अनलोडिंग में काम आते हैं, पैसेंजर को भी कैरी करते हैं, इसके लिए ब्रांड निकाला DMW, देशवर मोटर वर्क्स। बट BMW एंड DMW आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, ओके। और यूसी सुजुकी का अभी कार भी आ रहा है और सुजुकी का बाइक भी आ रहा है, और सुजुकी की क्या पता है इलेक्ट्रिक साइकिल भी आने लग जाए। तो ये मना नहीं कर सकते आप कि BMW कभी ई रिक्शा मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, तो चलो इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, क्योंकि आजकल बहुत कुछ चीजें असेंबल होकर बन जाती है, ऑर्डर पे बन जाती है, आपको अपना ब्रांड लॉन्च, अपना ब्रांड उसको देना होता है। तो ऐसे जब ऐसा कंडीशन एनवायरमेंट है बिजनेस के लिए कि जस्ट यू टू सेलेक्ट अ ब्रांड एंड यू कैन आउटसोर्स द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो यू कैन प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर यही पाया गया कि भले DMW ई रिक्शा में है, लेकिन वो BMW कार हाई प्राइस कार सेगमेंट में, लेकिन इट कैन स्टिल क्रिएट कंफ्यूजन, तो वहां पर इनको अलाउ नहीं किया। इस तरह से काफी सारे केसेस ट्रेडमार्क में होते हैं। जैसे केंट मिनरल RO है, काफी फेमस ब्रांड है, किसी ने केंटेक स्टार्ट किया तो उसको भी कोर्ट ऑर्डर से इंफ्रिंजमेंट का मानते हुए उसको रिमूव किया गया। तो ये इस तरह के इश्यूज चलते रहते हैं और वी शुड बी केयरफुल, ट्रेडमार्क लॉज आर इन प्लेस,
अगर आप कोई कॉपी करता है, कोई मिसयूज करता है, तो एक पेनल्टी का प्रोविजन है, कोर्ट ऑर्डर का प्रोविजन है, और आपको अपना पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और प्रोडक्ट विड्रॉ भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप में से कोई इंदौर से हो तो यू कैन, वहां पर किसी टाइम पे पिज्जा घर किसी ने ओपन कर लिया था, तो पिज्जा घर और पिज्जा हट का लोगो भी सिमिलर था, तो पिज्जा घर को सरेंडर करना पड़ा। तो ये सब चीजें हैं जो इसके साथ चलती है ना। एक लेकिन देखिए, थोड़ा सा जो बिस्किट प्रोडक्ट है या कोई और प्रोडक्ट है, कैंट आरओ है, इसमें थोड़ी बहुत आपको अगर ब्रांड का कंफ्यूजन हो जाए तो ठीक है, चलो कभी कंफ्यूजन हो गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम अगर ब्रांड मेडिसिन के साथ हो जाए, मेडिसिनल प्रोडक्ट के साथ, तो इट कैन बी हैजार्डस टू हेल्थ एंड इवन मे कॉज डेथ। अभी आपको पता है रेमडेसिविर के कुछ नकली इंजेक्शन मिले थे हमको, ये काफी पुलिस जो सर्च चीज में, और कई बार नकली इंजेक्शन, कई बार तो पानी और ग्लूकोज का भी एक बोला था कि भी इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो उसी तरह से Yes. अगर आप देख, है ना, तो वो बेसिकली वो फर्टिलिटी भी कोज कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए पुलिस ने काफी कार्रवाई भी की थी, कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए थे। अब देखिए आप, यहाँ पर ब्रांड है मेडजोल, दोनों जगह मेडजोल है। वन इज पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन, दैट इज फॉर गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स, अनदर इज मिडाजोलम इंजेक्शन, दैट इज फॉर एनेस्थीसिया पर्पस। तो और दोनों का ब्रांड मेडजोल है। अब यू थिंक, आप सोचिए कि अगर आपको पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन लगाना है और आपको एनेस्थीसिया लगा दिया जाए, और जिसको एनेस्थीसिया लगाना चाहता है उसको पेंटाप्रोजोल जो गैस्ट्रिक इंजेक्शन उसको लगा दिया, तो इट कैन बी फेटल टू द पेशेंट। तो इसीलिए ट्रेडमार्क लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, और कोई इसको इन्फ्रिंज करता है तो इसमें क्रिमिनल भी रिमेडी है, इसमें अल्टीमेटली इम्प्रिजनमेंट के भी ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसका मिसयूज ना करें, इसका थोड़ा सा स्टूडेंट्स को पूरा ध्यान रखें। आगे अपना फ्यूचर में कोई एंटरप्राइज भी खोलना है तो ट्रेडमार्क के लिए अपना फंडामेंटल क्लियर रखें कि हमें किसी का कॉपी नहीं करना। ये थोड़े ट्रेडमार्क के बारे में गाइडलाइंस थी। ठीक है, अब कॉपीराइट्स की बात करते हैं। you write your scientific article, you write your poems, you create a painting, you create a music, you create a audio work, you create a video work, and now you want to create a monopoly। आपको लगता है कि ये पोएम मेरा इंडिविजुअल वर्क है, आपको लगता है ये पेंटिंग मेरा इंडिविजुअल वर्क है, या ये मेरा सॉफ्टवेयर जो मैंने क्रिएट किया है, जो लैंग्वेज इसको कोड किया है, ये यूनिक कोडिंग जो सीक्वेंस है मेरा यूनिक है, तो दैट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट। तो लेकिन कॉपीराइट की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी आप कॉपीराइट की बात करें तो यू हैव टू फिक्स द वर्क ऑन सम सर्टेन मीडियम। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे माइंड में भी सेम सीक्वेंस की पोएम, सेम सीक्वेंस का आर्टिकल, सेम सीक्वेंस का कोड चल रहा था, लेकिन मैंने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया। आपको किसी लैपटॉप पे या पेपर पे कहीं इसको लिख के रखना है, प्लस अपने आप को ईमेल कर देना है, so that you can prove that on 29th of May of 2021 I have that software in my control। अगर आप उस कोड को अपने आप को ईमेल कर लेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में, व्हाटएवर इट इज, तो कल कोई कॉपी करता तो आप 31 मई को, तो आप बोल सकते हो 29 को मेरे पास था, आपने 31 को सेम कोड कैसे डेवलप कर लिया। तो यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को कल प्रूफ रखना है इसका, ठीक है ना। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। अगर आप एक पोएम भी लिखते हैं या एक म्यूजिक भी बनाते हैं, तो आप अपने आप को उसका नोड को सेव करके अपने आप को व्हाट्सएप कर दीजिए, तो यू हैव प्रूव्ड दैट ऑन पर्टिकुलर डे आई हैव दैट पर्टिकुलर म्यूजिकल नोट। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी जिससे आप अपना कॉपीराइट का प्रूफ कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन प्रोटेक्ट द कॉपीराइट थ्रू कॉपीराइट रजिस्ट्री ऑल्सो, वो भी प्रोविजन है, तो उसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो दैट इज मच मोर रिलायबल सोर्स। अगर आपका कॉपीराइट एक बार रजिस्ट्री में रजिस्टर है, तो आप इजीली आपकी जो कंप्लेंट है, आपकी जो प्लेंट है, वो कोर्ट भी इजीली एंटरटेन कर पाएगा। तो कॉपीराइट में सबसे बड़ी बात है कि इट्स आइडिया शुड बी ओरिजिनल, नॉट न्यू। ओरिजिनल मींस आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आइडिया कैन बी सेम। न्यूटन्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए दो प्रोफेसर को बोला जाएगा तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ग्रेविटी इज देयर, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, देयर इज है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर, लेकिन उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा, एक का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होगा, दूसरे का लेकिन मीनिंग सेम होगा। मींस एक्सप्रेशन इज डिफरेंट बट द लॉजिक इज सेम। तो ये कॉपीराइट का एक बहुत बड़ा एक पहलू है। कुछ लोग कहते हैं साहब मैंने मूवी बना ली, तो कौन बनेगा करोड़पति के बाद दूसरे और भी शोज आए, कौन बनेगा लखपति, तो आपका राइट्स केवल आपके, क्योंकि
जो नया शो होगा उसमें कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट होंगे, डायलॉग डिफरेंट होंगे, उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, उसमें म्यूजिक डिफरेंट हो सकता है। तो कॉपीराइट में आपका एक्सप्रेशन देखा जाता है, एक आइडिया नहीं देखा जाता। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द। तो फिर कुछ लोग कहते हैं सर मैंने अपनी मार्केटिंग का एक पर्टिकुलर तरीका निकाला है, मैं एक के साथ 2 गिफ्ट आई विल टू पैकेट के साथ 1 पैकेट फ्री करूंगा। तो दिस इज माय आइडिया, और उसको कोई अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो जरूरी है, इसलिए कहते हैं बिजनेस मेथड आर नॉट पेटेंटेबल, या इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो आपने देखा होगा जो बिजनेस स्टाइल आपका उबर का है, लगभग लगभग सेम बिजनेस स्टाइल आपका ओला का है, बिकॉज दिस द आइडिया। लेकिन उसका सॉफ्टवेयर का अलग प्रेजेंटेशन है, उसके उसके अलग तरह का गेटअप आता है उसके लिए। projections of straight line. And earlier we discussed about the projection of point, and in the chapter of projection. ओके, Yes, sir, please. नो। तो अच्छा, वन इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप लोग मैकेनिकल से, कुछ सॉफ्टवेयर से भी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक से भी होंगे, तो सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट, बट यू हैव टू सबमिट द, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया है मार्च 2021 में। पहले आपको एग्जीक्यूटिव फाइल देनी पड़ती थी, नाउ यू हैव टू सबमिट द पीडीएफ वर्जन ऑफ द कोड। आपको जो भी आपका सोर्स कोड है उसको पीडीएफ में फाइल में सेव करके कॉपीराइट ऑफिस में सबमिट करना है, फिर उसको एक बार जो भी उनका मैकेनिज्म होता है उसको चेक करके आपको सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। तो दिस इज अबाउट कॉपीराइट। कॉपीराइट की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आपके कोई फैकल्टी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई बुक से नोट्स डिक्टेट करा रहा है या किसी बुक से पढ़वा रहे हैं, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बाहर है। दैट इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट, दैट इज ड्यू टू अंडर द कोर्स ऑफ स्टडीज, टीचिंग एंड स्टडीज। ठीक है। फिर अगर आप लोग कोई क्लब है, उसमें कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई गाना गाया, सपोज कि 15 अगस्त के दिन कोई गाना गाया, तो इट इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट, इट इज फॉर द सोसाइटी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपने देखा हो कुछ होटल्स, जो कुछ बड़े बड़े होटल्स हैं, वो म्यूजिक प्ले करते हैं तो उसको लाइसेंस फी देना पड़ता है, क्योंकि दैट इज फॉर कमर्शियल पर्पज। तो जहां भी अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं कॉपीराइट का, देन यू हैव टू पे द रॉयल्टी, अदरवाइज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ अनदर concept is industrial design. So we have covered 2 concepts. One is the copyright, one is the trademark. Now the third concept is design. Here you see there are 3 microscope. Okay, both having the same resolution. Suppose 100 times resolution capacity in each microscope. Then the function is same. And what is the difference? What is the main difference in these 3 microscopes? Only the outer shape and configuration. That is the design part. Function is same, efficiency is same. So means there is no invention, because all are using same function, but what they are differentiating feature is the design. Left, central and right one have different design. So those aspects of shape and configuration can be protected under design. यहाँ आप लोग देखें, जो सर्कल बनाने के लिए मैंने कंपास दिखाया आपको, तो एक तो राइट साइड वाला कंपास है, एक लेफ्ट साइड वाला कंपास है, बोथ हैव सेम फंक्शन. देयर इज नो इनोवेशन in terms of efficient function, but what is the innovation in the shape and configuration? Left one is more attractive, more appealing to eye, so that those aspects can come under the design. then dustbin is there, same article but different shape, so function is same, but so those aspects will come under design. अब ये जो आपको डिस्प्ले है, जो आपको ड्रिंकिंग वाटर की बोतल, ये कौन सा कंपनी का है, आपको बता सकता है? किल्ले. So means you are able to identify a drinking bottle के which company it belongs before. अब मैंने यहाँ पर कोई ब्रांडिंग भी शो नहीं, डिस्प्ले नहीं किया. It means the design is a unique feature of a particular company. आप उसको उससे एसोसिएट कर रहे हो, तो that's become a property. One second for me. One second. So this is very important. That's why design need to be protected. Otherwise, other companies might be using the same design. And design registration procedure is relatively simpler than the patent, because here you need to submit all the views. Like this is a rice cooker. Then you have to submit the front view, then the left side view, then the right side view, then the back view, then the isometric perspective view, then top view, and you can give bottom view also. So हमको जो भी एक आर्टिकल आपने जो इनोवेट किया है, डेवलप किया है, डिजाइन किया है,
उसके सारे व्यूज आपको डिजाइन ऑफिस को सबमिट करने होंगे। देन ओनली दे कैन रजिस्टर डिजाइन एंड दे कैन, वो कुछ इंक्वायरी रेज कर सकते हैं। देन यू हैव टू काउंटर दोज इंक्वायरी। सपोज करो सिमिलर आर्टिकल उनको मिल गया, या फिर आपके व्यूज कंसिस्टेंट नहीं है, या कोई टेक्निकल इशू है, तो दे विल आस्क। अब थोड़ा सा लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज द पेटेंट, व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आप लोग में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो पीटर इंग्लैंड के गारमेंट्स पहनते हैं, और भोपाल या इंदौर या एमपी में काफी सिटीज में पीटर इंग्लैंड के आउटलेट्स भी हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि इन्होंने अभी अब आप कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके देखिएगा, पीटर इंग्लैंड में कुछ इनके एडवर्टाइजमेंट्स हैं। पीटर इंग्लैंड इंट्रोड्यूसिंग नीम तुलसी कलेक्शन, द इंडियन कलेक्टिव अपैरल इन्फ्यूज्ड विद द गुडनेस ऑफ नीम एंड तुलसी। नीचे लिख रहा है द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। तो जो आपके जो फैब्रिक में जो डाई कर रहे हैं, उस डाई के अंदर हर्बल फॉर्मेशन जो इन्फ्यूज कर रहे हैं, उसको भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। आप दिन भर वो कपड़े पहन के यू आर यूजिंग दोस क्लोथ्स गारमेंट्स, बट यू आर नॉट अवेयर दैट यहाँ भी एक पेटेंट का एक इशू प्रेवलेंट करता है। तो पेटेंट्स आपके आसपास काफी कुछ है, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते कि क्या क्या पेटेंट्स है, क्या क्या पेटेंट्स। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी जो डाई को इन्फ्यूज कर रहे हैं, वो भी एक पेटेंटेड है। तो देखिए इसका पूरा पेटेंट का पूरा सर्टिफिकेट इशू हुआ है। अब चलो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ओपन, एक तो स्टूडेंट्स अपना माइक ओपन कर लें, कोई मालवीय, अंश मालवीय या कोई कुछ इंक्वायरी करेंगे छोटी छोटी, हम लोग इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को। अंश, आपका नाम अंश है? यस सर। हाँ अंश, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे स्टंप दिख रहे हैं आपको? यस सर दिख रहा है। तो पहले क्या प्रॉब्लम था, पहले जब भी क्रिकेट मैच में जब इस तरह के डिसीजन होते थे रनआउट के, हिट विकेट के, स्टंप्स के, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था कि किस मोमेंट पे आपने स्टंप को टच किया बॉल ने, और किस मोमेंट पे आपकी बैट की पोजीशन है, या व्हाट एवर इट इज। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसको सोल्व आउट करने के लिए अभी आप ये वाले स्टंप्स देख पाते होंगे, जब आप लोग मैच देखते हैं तो ये वाले स्टंप्स, इसको बोलते हैं एलईडी स्टंप्स, राइट? यस सर। अब ये एलईडी स्टंप्स भी पेटेंटेड है आपको, these are a part of patented technology। और सबसे बड़ी बात ये कि the inventor ब्रोंटे करमेन himself provide, ये खुद स्टंप प्रोवाइड कराता है एक मैचेस के लिए, और वापस शाम को जब मैच खत्म हो जाता है तो they have to return the stumps। और जो मैच को जो स्टंप यूज करते हैं उस टाइम पे, उसका कुछ रॉयल्टी lakhs रुपीस में बनता है, वो ये चार्ज करता है अराउंड 8 lakhs आई थिंक पर मैच। तो एक इन्वेंशन में एक मैच से अगर आप 8 लाख कमा सकते हो, और सबसे बड़ी बात है, सपोज करो पूरी सीरीज है, टेस्ट सीरीज है या कुछ और कोई सीरीज है, या फिर पूरा आजकल आईपीएल का भी है, वनडे 2020 भी चलता है। तो अगर आपने 60 मैच या 50 मैच में अगर आपने स्टंप्स प्रोवाइड करते हैं, यू आर बिकम ए मिलियनियर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक छोटा सा पेटेंट है, वो आपको एक बहुत बड़ी कमर्शियल एडवांटेज दे जाता है। और ये पेटेंट किसके बारे में है? केवल एक सिस्टम बता रहा है कि जैसे आपकी बॉल टच होगी, जैसे आपके दोनों बेल्स हवा में जाएंगे, जैसे दोनों बेल्स आपके हवा में गए, उस मोमेंट को कैप्चर कर लेगा कि कौन से सेकंड पे ये बेल्स हवा में, क्योंकि जब तक बेल्स दोनों हवा में नहीं आ जाएंगे तब तक आउट नहीं माना जाएगा, तब तक स्टंप्स को डेविएट नहीं माना जाएगा। तो ये इसका कुछ पेटेंट था इस तरह का। तो ये क्लेम इन्होंने किया था, एक असेंबली है जो आपके मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है, किसके? बेल्स के और विकेट के। विकेट कितना डेविएट हो रहा है, बेल्स कितना डेविएट हो रहा है, और उसके लिए उन्होंने सर्किट बनाया हुआ है जो सेंस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो और पावर सोर्स वगैरह जो भी काफी सारी चीजें हैं इसमें, सर्किट में काफी सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये सब चीजें, तो एक छोटा सा एक इन्वेंशन कितना यूजफुल हो सकता है। और आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्रिकेट के जो बेल्स हैं, ये भी, या जो एलईडी टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड है। बहुत हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं, इट्स वेरी सिंपल, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसको यूज करके ट्रिगर को कैप्चर करते हैं कि कब बॉल टच हुई और कब बेल्स आपके हवा में आए। तो ये काफी एक मतलब एक इन्फ्लुएंसिंग चीज है कि भाई एक छोटे से पेटेंट से पीपल आर अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीस। तो पेटेंट्स की जहां तक बात करते हैं, तो पेटेंट्स जनरली या तो आइदर योर न्यू प्रोडक्ट, योर मशीन, योर एपैरेटस, और अ न्यू प्रोसेस या प्रोडक्ट को मिलेगा। ये कोई टेक्निकली एडवांस इन्वेंशन को मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने एक छाते के ऊपर आपने एक टॉर्च लगा दी, रात में तो टॉर्च जला लेते हो, दिन में छाता खोल लेते हो। नो, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट। एक अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए।
देखिए पेन के साथ रबर टाई अप कर दिया, सिंपल, उसको फेविक्विक लगा के और कभी रबर यूज कर ले तो पेन यूज, तो दीज आर मियर अरेंजमेंट, उनको पेटेंट नहीं मिलेगा, इट शुड बी टेक्निकली एडवांस और इट शुड हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो भी आप पेटेंट फाइल करें उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकें लार्ज स्केल पे। ऐसा नहीं कि आपने बनाने में एक पेटेंट, एक इन्वेंशन को बनाने में 20 साल लगे, दूसरा प्रोडक्ट को बनाने में 20 साल लगे, तो सोसाइटी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो काफी कुछ बैलेंस रखा गया है इसमें। फर्स्ट टू फाइल सिस्टम है, जो पहला अप्लाई करेगा पेटेंट को उसको राइट मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग आपने पेटेंट तैयार कर लिया और 6 महीने के लिए घूमने कहीं बाहर निकल गए तब तक किसी और ने अप्लाई कर, यू शुड फाइल इमीडिएटली। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके पेटेंट्स के, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। तो पेटेंट कैन बी अ प्रोसेस, इट कैन बी मशीन, इट कैन बी आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, इट कैन बी कंपोजिशन ऑफ मैटर, इट कैन बी न्यू एंड यूजफुल इम्प्रूव। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। देखिए आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एक मेटल रोड है। अब इसी मेटल रोड को वी हैव शार्पन एट वन एंड एंड वी हैव टेपर एट वन एंड। आप लोग मैकेनिकल से तो इट बिकम ए ऑल पिन। We sharpen at one end and we pierce at one end. It become a hand needle. We sharpen at one end and we pierce at the same end. It become a machine needle. Then we curl it around. Then it become a paper pin. है ना? That is a वो उसमें आपको छेद नहीं होगा, इसका आपका पेपर सेफ रहेगा। We change the design to heart shape. Then it's a new design. ठीक है? Then we put a plastic support. Then it become a new design. Okay. Then it become a drawing pin also. So there are a lot of innovation around a single metal rod, single fine twisted metal rod. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि इनोवेशन की कोई लिमिट नहीं है, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे इनोवेशन से काम नहीं चलेगा। जैसे कि एक चेयर है, उसके आपने कैस्टर्स व्हील लगा रखे हैं ताकि चेयर को आगे पीछे कर सकें अकॉर्डिंगली, और उसी कैस्टर को आपने टेबल पे फिट कर दिया और बोला इट्स अ न्यू इन्वेंशन। नो, इट्स जस्ट एप्लीकेशन ऑफ दैट इन्वेंशन टू अदर एरिया। आपका कोई इन्वेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन उसी व्हील पे अगर आप ब्रेक सिस्टम इन्वॉल्व कर दो देन इट बिकम योर इन्वेंशन। जैसे कि जो मैंगो पे कोटिंग करते हैं ताकि खराब नहीं हो, तो उसके लिए मिथाइल डेरिवेटिव यूज करते हैं। इफ यू आर यूजिंग इथाइल डेरिवेटिव then your invention may be novel but it is not technically advanced. Why? जी सर। हाँ चल रहे सर, चल रही सर। फिर ब्रोमो कंपाउंड्स को यूज किया, ब्रोमो कंपाउंड्स में मोर फ्लेम रिटार्डिंग कैपेसिटी, देन इट इज शोइंग बेटर प्रॉपर्टीज देन द these फ्लोरो कंपाउंड्स। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी सेम किसी की डिफरेंट मिल रही है आपको, तो यहाँ पर आपका इन्वेंशन बन, जहाँ पर आप थोड़ा हटके सोच सकें, जहाँ पर थोड़ी नई प्रॉपर्टीज नया आउटपुट लेके आ सके, वहां पर आपके इन्वेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच पे भी काम करना पड़ता है। जैसे बाईसाइकिल आप देख रहे हैं, इट्स ए हॉरिजॉन्टल, ओके। अब इसमें स्पेस काफी चाहिए क्योंकि जितनी साइकिल की लेंथ होगी उतनी आपको पार्किंग स्पेस चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से वर्टिकल बाईसाइकिल पार्किंग से हो सकता है। तो जहां पर ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच अवेलेबल है, वो उसको आप लोग थोड़ा सा, हम लोग उसको एडवांस मानते हैं, उसको एक इन्वेंशन के लिए कैपेबल मानते हैं, पेटेंट के लिए कैपेबल मानते हैं। सेल्फ लिफ्टिंग आयरन, यहाँ पर देखिए आप, ये जो 22A और 22B दिख रहा है ना आपको फिगर पे, अंश आपको दिख रहा है 22A 22B? यस सर, दिख रहा है। हाँ, सो ये क्या है आपका, ये बेसिकली ये लेग्स हैं एक्चुअली। जब भी आप प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं कपड़ों के, कभी कभी अर्जेंट कॉल आ गया आपका, अर्जेंट डोरबेल बज गया, अर्जेंट कोई एक्टिविटी हो गई जिससे आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, सपोज कीजिए, तो उस वक्त क्या हो, जैसे आपका whenever your hand is lifted from the iron, what it will do, it will sense it that your hand is lifted and it will automatically through the sensing means it will, ये जो 22A 22B है जो नीचे अपनी तरफ झुक जाएंगे, तो आपका जो प्लेट का जो कॉन्टेक्ट है सरफेस से हट जाएगा। तो ये एक इन्वेंशन है सेल्फ लिफ्टिंग आयरन। इस तरह के इन्वेंशन जहां पर आपको, इसका एडवांटेज क्या है बताइए, इसका एडवांटेज क्या है? जब अपने आप ये कपड़े से दूर हो जाएगा, ये जो इसका सरफेस है, जो प्लेट है, तो इसका एडवांटेज क्या है?
सर एक्सीडेंट्स कम होंगे सर, जैसे प्रेस भी कर रहे हैं तो फिर कपड़ा जलेगा नहीं। कपड़ा नहीं जलेगा है ना, तो कपड़ा डैमेज होने से बच जाएगा। तो इसका एडवांटेज है। यस सर। टेक्निकलिटी क्या है कि जो लेग्स का जो हमने जो इन्वॉल्व किया है वो पहले किसी आयरन में नहीं आ रहा था। तो हमारा इन्वेंशन नया भी है, इन्वेंटिव भी है और इसका यूज भी है। तो इस तरह के इन्वेंशन को हम लोग पेटेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको पढ़िए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको पढ़िए एक बार आप। अंश, आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, यस सर। इसको थोड़ा रीड करिए, थोड़ा तेज। Okay, sir. An iron comprising an electrically heated sole plate, a handle, a separation mechanism including at least one lifting leg for lifting a bottom surface of said heated sole plate away from a supporting surface, a sensor disposed in said handle providing for control of side separation mechanism, wherein when sensor detects the hand of the user, said sensor sends a signal to side separation mechanism to lower the iron by retracting side separation mechanism. And when the user releases side handle, side sensor signals side separation mechanism to raise the iron. तो आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 4 समझ रहे हैं आप? ये कह रहा है कि जैसे आपका जो हाथ है वो जैसे उस पर हटेगा तो वे अपने आप ऊपर चल जाएगा, है ना, और जैसे वो लगेगा तो अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप यू कैन आयरन द क्लोथ्स। तो इट्स अ वेरी यूजफुल इन्वेंशन। तो इस तरह से हम लोग क्लेम करते हैं इसको। अब देखिए आप टाइटल कैसे हो सकते हैं। टाइटल शुड बी सिंपल, like foldable chair, herbal composition to treat constipation, display screen for visually impaired, multi-directional switch, a method of water purification, process to condense the water droplet। तो इस तरह से आपको सिंपल टाइटल देने हैं। मोबाइल एंड ऑटोमेटेड apparatus for shifting of goods। तो आपको टाइटल बिल्कुल सिंपल रखना है, प्लेन रखना है। फिर आप बैकग्राउंड में कुछ ऐसा समझा सकते हैं जैसे कि फाउंटेन पेन और जेल पेन। तो जेल पेन का पेटेंट फाइल करना है तो क्या एडवांटेज है? नो प्रोन फॉर, इसमें लीकेज के चांसेस कम होते हैं इंक पेन, फाउंटेन पेन के मुकाबले। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि जेल आपका विस्कस फॉर्म में होता है और आपका इंक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये आप इस तरह से अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आपको कुछ पेटेंट्स के कुछ बाहर भी हैं, जैसे कि कोई मोरालिटी इश्यूज है, जैसे किसी ने खाने में मिलावट कर दी, मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, मेथड ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग के नए नए तरीके। ठीक है ना, ये, या फिर आप कहते हो कि मेरा आउटपुट इनपुट से ज्यादा है, then it becomes frivolous invention। कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल है जैसे कि न्यूटन्स लॉ, डार्विन थ्योरी, ये भी पेटेंट के बाहर है। फिर डिस्कवरी, सपोज कीजिए भोपाल के बाहर कोई जगह है, सपोज कीजिए आप होशंगाबाद रोड पे निकल गए आप, वहां पर आपको कोई नया प्लांट मिला, उसमें कोई एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी डिस्कवरी है कि आपने प्लांट को खोजा, वो तो एग्जिस्ट करता था, या आपको नए तरह का कोई स्टोन मिला, ठीक है, जिसमें शाइनिंग बहुत ज्यादा है, तो ये आपकी डिस्कवरी है, ये इन्वेंशन में नहीं आएगा। इस तरह से जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी, जिससे प्लांट्स का बीज को रिप्रोडक्शन खत्म हो जाए, जिससे प्लांट की ग्रोथ खत्म हो जाए, इस तरह की जो चीजें हैं जो वो जिसके लिए है ह्यूमन हेल्थ के लिए, जैसे कि आपका सपोज कीजिए आजकल चल रहा है कि आपको क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये भी एक डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इन सब चीजों को पेटेंट नहीं मिलता। तो काफी सारी चीजें पेटेंट के, वेरियस थिंग्स आर बियॉन्ड द पेटेंट, वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और आपका जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी इन्वेंशन होते हैं वो भी पेटेंट के लिए बाहर होते हैं, उनको पेटेंट नहीं मिलता। जिसमें यूरेनियम, थोरियम, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड, उनको बाहर होते हैं। दूसरी बात, जो सीक्रेसी डायरेक्शन में जैसे गन या फिर आपके इस तरह के आर्मामेंट्स हैं, वो भी आपके पेटेंट के बाहर। और कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि मेडिसिन है आपकी। अब जैसे कि पैरासीटामोल का पर्पज है टू रिड्यूस फीवर। अब कुछ लोगों ने बाद में बोला कि सर फीवर के साथ साथ इसी मेडिसिन से आपकी पेन भी दूर हो जाएगा, एंटी एनाल्जेसिक भी है, तो एनाल्जेसिक भी है। तो ये क्या इसका पेटेंट मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन तो सेम है, बस आपने उसकी दूसरी प्रॉपर्टी बता। इस तरह से एस्पिरिन है तो पेन रिलीफ में काम आता है, कुछ लोग कार्डियोवास्कुलर के लिए यूज कर रहे हैं, तो सेकेंड मेडिकल यूज इज नॉट पेटेंटेबल एट ऑल। ध्यान रखना है आपको। अब इसको अंश आप इसको पढ़िए एक बार, क्लेम को एक बार। यस सर।
introductory phase body of the claim link that joins the two segment. A data एक input मिनट, device. 1 सेकेंड। बेसिकली क्लेम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंट्रोडक्टरी फेज जो रेड कलर से मार्क किया हुआ है, एक लिंक वाला जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, एक बॉडी ऑफ द क्लेम जो हमने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है। अब पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ जी। Yes, sir. A data input device comprising an input surface adapted to be locally exposed to pressure or pressure force. A sensor means disposed below the input surface for detecting the position of pressure. तो आराम से पढ़िए। A data input device comprising an input surface adapted to be locally exposed to pressure or pressure force. A sensor means disposed below the input surface for detecting the position of the pressure. क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए? माउस है शायद, माउस है क्या सर? माउस बिल्कुल सही, माउस भी है, और कीबोर्ड भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है। टच पैड भी हो सकता है, यस सर। है ना? एटीएम मशीन का भी टच पैड, तो ये सब हो सकता है। तो यस सर। आप देख रहे हैं ना कि कैसे इसको समझाया हुआ है। आपको एक्सप्लेन करना है अपने इन्वेंशन को कि कैसे काम कर, ठीक है? अभी एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल है। अंश आप पढ़ सकते हो इसको। Yes, sir. We claim a washing machine 100 comprising a drum section 10, a motor 20, a temperature sensor 30, a water inlet 40, a water outlet 50, a weight sensor 60. एक मिनट, 1 सेकेंड। इसका मतलब हमने अपने पहले क्लेम में हमने अपने सारे कंपोनेंट डिफाइन कर दिए और हमने उसको नंबर दे दिया एक इंडिकेटिव कि भाई ड्रम सेक्शन को 10 मान लेते हैं, मोटर को 20, ताकि हम जब इन्वेंशन को क्लेम करते हैं तो क्या करते हैं, सारे उसके जो अलाइनमेंट्स होते हैं उसको आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है? आगे बढ़िए आप। The washing machine 100 as claimed in claim 1, wherein the drum section 10 is made of metal and having cylindrical shape. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अब फर्स्ट क्लेम में तो हमने सारे एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए, क्या क्या एलिमेंट्स है। सेकंड क्लेम में हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि वो किस नेचर के हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई सा भी ड्रम उठा लिया, ड्रम सिलेंड्रिकल शेप ही होना चाहिए और मेटल का होना चाहिए। आगे चलिए। The washing machine 100 as claimed in claim 1, wherein the motor 20 is servo motor. ठीक है, तो हमने मोटर को भी डिफाइन कर लिया, किस नेचर की मोटर है, सर्वो मोटर है। The washing machine 100 as claimed in claim 1, wherein the water inlet 40 has tubular shape. हाँ, तो इट मींस जब भी हम क्लेम करते हैं तो हमें सबसे पहले क्लेम में तो सारे एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करना होता है। उसके बाद हम उसके क्या करते हैं, हर एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं कि इसका किस नेचर का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट से कि इनलेट किस तरह का इनलेट है, उसका नेचर क्या है, मोटर किस तरह की मोटर है, उसकी क्या कैपेसिटी, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सब चीज आपको देनी पड़ेगी। हाँ, आप चलते जाइए, अब इसको पढ़िए आप। Claim crafting. Athletic shoe comprising first, a left upper portion, second, a right upper portion, third, a sole portion integrally connected to said left portion and to said right portion, and means for detachably fastening said left upper portion to said right upper portion. अब ये अच्छे से देख लीजिए, इसमें लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन है और सोल पोर्शन है और जो आपका फास्टनिंग पोर्शन है, ये देखिए आप, दिख रहा है आपको? शूज का एक तो सोल पोर्शन होता है, एक लेफ्ट पोर्शन होता है, एक राइट पोर्शन होता है, और एक क्या होता है, फास्टनिंग, जिससे अपन इसको टाइट कर सकते हैं। तो ऐसे हमने एक शूज को डिफाइन किया है। हमने उसको शूज नहीं बोल के एक उसको एक स्ट्रक्चर बोला है। तो जब भी आप मैकेनिकल पेटेंट हो चाहे इलेक्ट्रिकल पेटेंट हो, आपको उसके स्ट्रक्चर को कंपोनेंट वाइज डिफाइन करना पड़ेगा। चल So first, providing a first and second holding tank. Second, filling that first holding tank with water. Third, filling the second holding tank with CO2. Fourth, pumping the CO2
water and CO2 in the first tank for a predetermined time. तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना किस तरह से फ्लो जा रहा है। पहले हमने डिफाइन किया कि भाई मेथड है पहली बात तो किस लिए, बेवरेज को कार्बोनेट करने के लिए। उसके बाद हमने बोला कि 2 टैंक लेने पड़ेंगे, तो फर्स्ट होल्डिंग टैंक या सेकंड होल्डिंग टैंक। फिर आपने डिफाइन किया कि फर्स्ट होल्डिंग टैंक में क्या आएगा, वाटर आएगा। फिर आपने बोला सेकंड होल्डिंग टैंक में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को पंप करना पड़ेगा। तो एक सीक्वेंस है आपका पूरा, आपको जो भी क्लेम आप समझाते हैं तो आपको एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है। ये मेथड क्लेम है आपका, तो आपको स्टेप्स लिखनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब और कोई स्टूडेंट है आपके अलावा, आपके अलावा इसको अपन ओपन कर सकते हैं, लेट उनको भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। Yes, sir. हिमांशु, अभी मैं थोड़ा ज्यादा बोल नहीं सकता ना, क्योंकि जस्ट मैं 2-3 हफ्ते हुए मुझे रिकवर हुए, तो मैं आप लोगों को सपोर्ट ले रहा हूँ पूरा। इससे बच्चों इससे बच्चों में भी अलर्टनेस आती है कि हमारे हिमांशु है क्या? सौरभ? यस यस। हाँ, तो नैना कुमारी भी है, नैना कुमारी। एक कोई भी अपने को अनम्यूट करके करो। हाँ, कोई भी वॉलंटियर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैन आई? यस हाँ यस। बिल्कुल। कौन आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही? एनी स्टूडेंट अदर देन अंश मालवीय, क्योंकि औरों को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। सर कैन योर हेड्स। हाँ हाँ, आ जाओ ना, कौन जो भी। हाँ हाँ, यस यस। A device for automatically switching off a stove having a fuel control knob to control flow of fuel to the burner. First of the stove, said device comprising of a temperature sensor. Second, position close to the burner. A connecting rod connecting the temperature sensor to a latching rod, a spiral spring loaded ratchet wheel mounted below the knob and adapted to be rotated anti-clockwise direction by a projection on the top side of the wheel, characterized in that when the wheel is rotated anti-clockwise and the burner switched on, the temperature increases causes the temperature sensor to push the latching rod to latch and lock one of the teeth of the racket wheel. And upon reduction in temperature on the burner, consequent to the extinguishing of the flame, the temperature sensor retracts to release the wheel, wherein upon the resulting clockwise rotation of the wheel, the projection on the wheel pushes the knob to switch off position to cut off fuel supply to the stove. तो थैंक यू। तो बेसिकली क्या है ना, ये एक इन्वेंशन किस लिए मैं बताता हूँ आपको। कई बार आपने देखा होगा आपका जो गैस का बर्नर ऑन आप स्विच ऑन कर देते हैं उसको, और आपका वहां पर कुछ नहीं होता, बस गैस निकलती रहती है और देयर इज नो फ्लेम। तो उससे क्या होता है, आपका गैस का कंसंट्रेशन आपके किचन में आके इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप गैस को कंज्यूम नहीं कर रहे। वहां पर ये इन्वेंशन आपका बहुत सपोर्टिव है। ये क्या करेगा, आपके बर्नर के टेम्परेचर को सेंस करेगा। अगर गैस का स्विच ऑन है तो इसका मतलब बर्नर का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑन मींस गैस पास हो रही है और आपका इट शुड बी बर्न। अगर स्विच ऑन है और टेम्परेचर कम है, इट मींस देयर इज अ लीकेज। तो वहां पर उस चीज को सेंस करके ये नॉब को ऑन ऑफ करे ऑटोमेटिक। तो ये काफी यूजफुल इन्वेंशन है सोसाइटी के लिए। कई बार हम देखते हैं कि मतलब हमें पता चलता है कि हमने ऑन कर रखा है लेकिन इट इज नॉट बर्निंग, तो दैट में क्रिएट अ सीवियर प्रॉब्लम अगर बहुत लंबा टाइम हो जाए। तो ये इस तरह के इन्वेंशन आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग समझिए कि ये सोसाइटी को हेल्प करते हैं, आपको भी इन्वेंशन देते हैं और आपको मनी भी देते हैं। तो एक इन्वेंशन का मतलब होना चाहिए उसकी यूटिलिटी भी होनी चाहिए। आपने इन्वेंशन बना दिया, उसकी यूटिलिटी नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिंपल अप्रोच है। अब ये वाला देखिए आप, ये आपका जो स्क्रीन है, कई बार मोबाइल नीचे गिर जाता है, तो मोबाइल नीचे गिरने से क्या उसका स्क्रीन डैमेज हो जाता है और स्क्रीन फट जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक इन्वेंशन एक इन्होंने बनाया कि भाई आपका जैसे आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इस तरह से एक्टिवेट होगा कि जैसे आपको मोबाइल ऊपर से गिरेगा तो उस तरह से गिरेगा कि आपके एज की तरफ से गिरे। तो इस तरह के इन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है इसमें। तो ये भी आपका एक पेटेंट का पार्ट है। अब ये वाला देखिए, अंश आप पढ़ लीजिए इसको, लास्ट वाले को, फिर इसके बाद क्लोज करेंगे। Okay, sir. So I want to Protecting read. devices.
एक मिनट कोई एक स्टूडेंट ने और वॉलंटियर बनना चाहता है, आप पढ़िए चलिए। Yes, sir. Sir, may I read? Yes, please. Protecting device from impact damage. An embodiment of portable device 300 having a protection element 120 that includes one or more propulsion elements. 302. एक मिनट यहाँ पर आपको फोकस करना है प्रोपल्जल एलिमेंट, जो की फीचर है आपका प्रोपल्जल एलिमेंट में। हाँ ठीक है ना, आगे बढ़िए। हाँ Propulsion element 302 may operate to proper and or exert or a gas from the portable device 300 to reduce the speed of portable device 300 as it travel towards an impact surface 304 substantially in the orientation shown. A compressed gas cartridge as a described above may be used as a source for the gas. ठीक है, अब नीचे वाला पैराग्राफ। A system and method for protecting device from impact damage is provided prior to impact between a surface and a device. A determination of the risk of damage to the device is made. If the risk of damage to the device exceeds a threshold, a protection system is activated to reduce or substantially eliminate damage to the device. तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, एक प्रोपल्जल एलिमेंट है। जैसे आपका फोन नीचे की तरफ जाएगा तो प्रोपल्जल जो इसमें जो इसके जो नॉब्स है वो बाहर निकल जाएंगे और एक तरह से एक तो स्पीड कम कर देंगे, प्लस जब गिरेंगे तो डायरेक्ट हिट नहीं होगा आपका मोबाइल। लेकिन अगर सपोज करो आप अपने कोई बेड पे चेयर पे बैठे हुए, वहां पर सरफेस की डिस्टेंस और आपके मोबाइल की डिस्टेंस सपोज कीजिए 1 इंच है, तब ये एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि इतना मार्जिन भी नहीं है इसमें। लेकिन अगर वो 1 फीट या 2 फीट है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपको मोबाइल बच जाएगा। लेकिन इससे क्या सिस्टम थोड़ा बल्कि हो जाएगा, दिक्कत है। तो दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट यूजिंग। लेकिन बट इट्स अ गुड इन्वेंशन। जो अगर 60, 70, 80 हजार, 90 हजार, 1 लाख के मोबाइल यूज करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये मेरा आज का यही सबमिशन था आपको। मेरे हिसाब से लास्ट स्लाइड थी, बाकी इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट द लास्ट। तो अब आप नाउ यू कैन हैव एन आइडिया कि आईपीएस सिस्टम क्या है। ट्रेडमार्क में आपने देखा कि आपको कहाँ कॉपी करने से बचना है, कैसे इन्फ्रिंजमेंट से बचना है। कॉपीराइट में मैंने आपको बताया कि क्या क्या एलिमेंट्स आप कॉपीराइट कर सकते हैं इंफ्लुएंस सॉफ्टवेयर। डिजाइन में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका डिजाइन डिस्टिंक्टिव है और आपका एफिशिएंसी सेम है 2 डिवाइस की, तो आप डिजाइन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पेटेंट में अगर आपने कोई नया लॉजिक बनाया है जिससे एडवांस इम्प्रूव्ड फंक्शंस मिल रहे हैं, तो आप पेटेंट के लिए जा सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा आइडिया भी दिया है कि कैसे उसको क्लेम करना है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से फॉर टुडेज आई थिंक दिस सेशन इज ओवर, और अब हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for sharing with us the valuable knowledge in a simplified manner. The practical approach of the session helped us a lot in understanding about IPRs and how they work. Now, I would like the audience to be free and ask any questions that you have related to today's session. We will wait for a few moments before moving ahead. You can also type your question in the chat box. Students, if you have a question, you can unmute yourself and then ask. Students can raise your hand first, okay? एनी क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी लगता है कि सर हम ये इस डिजाइन को कैसे प्रोटेक्ट करना है पेटेंट में, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आती, किसी भी तरह का आपको कोई भी इंक्वायरी आप पूछ सकते हैं ट्रेडमार्क कॉपीराइट की, या एक जनरल इंक्वायरी में अगर आपको कभी प्रॉब्लम फेस हुई हो, या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सर, Good afternoon, sir. जी बोलिए। Please raise your hand first, please. Yes, Himanshu ask, then Naina. Himanshu ask your question. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, if 2 persons without knowing each other are working on the same project or a same thing, but they don't know each other, so it's a matter of time who completes the project firstly. So is there any procedure
so that we can file a patent or another thing, that when we start the project and if we get succeed in it, then it would be ours. Because if someone got succeed firstly, then the another person's all the like research and study got in vain. एक्चुअली So what to do in this case? देखो ऐसे केसेस में क्या होता है, यूएस में पे था फर्स्ट टू इन्वेंट का कंसेप्ट था, अब अमेरिका वाले भी अब फर्स्ट टू फाइल पे आ गए, इंडिया में शुरू से फर्स्ट टू फाइल है। तो और इवन इनफैक्ट अब तो पेटेंट जब आपका रिसिप्ट जनरेट होता है उस पर लिखा रहता है कि 2:25 और 13 सेकेंड। तो इट मीन्स नाउ अब आपका डे, अगर आपका सेम डे भी पेटेंट फाइल तो आपका टाइम चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि पूरा कंसेप्ट सेम नहीं हो सकता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी, ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि आपका सेंसर अरेंजमेंट भी सेम है, आपकी वर्किंग रेंज भी सेम है, आपका लाइट को रिफ्लेक्ट करने का तरीका भी सेम है, आपका मटेरियल भी सेम है, ठीक है ना, एवरीथिंग, इवन आपकी राइटिंग स्टाइल भी सेम है। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही सही आपका, कुछ ना, इवन अ माइनर डिफरेंस, इवन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, ट्रांसमिशन करने का तरीका डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है रेंज अलग हो सकती है, टेम्परेचर रेंज अलग हो सकती है, वर्किंग एनवायरनमेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आप उस पर भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इस पे काम कर रहा हूँ मैं, वो दूसरे इन पे काम कर रहा हूँ। अदरवाइज इन केस अगर कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि दोनों ने सेम काम किया है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कोई कॉपी नहीं किया, तो उस केस में टाइम चेक किया जाएगा किसने पहले फाइल किया है, और बाय द वे वो टाइम भी सेम निकला तो हो सकता है फिर कंट्रोलर के आस्क उनको पर्सनली बुला सकता है और बोल सकता है कि क्या मैटर है, फिर राइट्स इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। Yes, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you very much. Yes, Naina Kumari, you can ask the question. लेकिन ये वही बात हो जाएगी, ये जो अभी अपने हम कह रहे थे ना, ये मोनेको क्रेको वाली बात, वो कोइंसिडेंस बहुत कम होते हैं वैसे। Yes. गुड आफ्टरनून सर। सर अभी आपने जैसे बताया कि सर जो सेल फोन होता है वो जैसे आप उसके जो सेव करने के लिए आपने बताया कि उसमें कुछ मतलब वो करते हैं सर, वो आप यूज कैसे करेंगे सर उसको आप, अगर वो तो सेल फोन में अगर नहीं प्रोपोजल एलिमेंट आपको बाहर की तरफ लगाने हैं ना, तो आप लगा सकते हो, और उसके साथ जो उसको गैस, उसको गैस का जो प्रोवाइड करना है इनपुट, ताकि वो फूल सके, बाहर निकल सके, तो उसको सिस्टम, बल्कि देखो इन्वेंशन है लेकिन फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसको जब आप, लेकिन इन्वेंशन है यूजफुल, अगर कोई यूज करेगा तो फ्री टू यूज, लेकिन आप लोग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है सिस्टम बल्कि हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, हम लोग ध्यान रख लेंगे, स्क्रीन पे गार्ड लगा देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरा स्क्रीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मुझे बिल्कुल डैमेज नहीं करना, देन इट कैन बी यूज्ड। भाई अगर 100 इन्वेंशन होते तो मार्केट में तो 2 इन्वेंशन आते हैं ना, 98% तो नॉलेज बढ़ाने के लिए है, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मार्केट में सारे लेकिन वो इन्वेंशन है दैट इज यूजफुल, अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसको यूज कर सकता है वो, ठीक है। तो सपोज कीजिए कोविड वैक्सीन थी, पहले कभी काम नहीं आती थी, अब कोविड वैक्सीन का इतना यूज हो गया, तो सपोज कीजिए कुछ ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी यूज किया, किसी ने एम्फोटेरिन के इंजेक्शन भी यूज किए, तो सेकंड यूज अब निकला है उसका, तो कोई भी इन्वेंशन का हो सकता है यूज 10 साल बाद आ जाए, 15 साल बाद आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए इन्वेंटर अपना इन्वेंशन सिक्योर करके रखता है, ताकि कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट हो तो रॉयल्टी अर्न कर सके। क्या? यस सर, थैंक यू सर। Yes, any student? Sir, I have a question. Sir, I also have a question. Yes, you can. सर जैसे अभी सिचुएशन में वैक्सीन कंपनीज भी बोल रही हैं कि हम लोग पेटेंट हटा देंगे, शायद हो सकता है ऐसा, पर सर जब ऐसा मास प्रोडक्शन होने लगेगा तो फिर सर क्वालिटी भी डिग्रेड हो सकती है, तो फिर सर इसका इम्पैक्ट लोकल सिटीजन्स पे तो पड़ेगा ना सर। देखिए जहां तक पेटेंट रिवोकेशन का है, वो ये होता है कंपल्सरी लाइसेंस। अगर किसी भी कंट्रीज में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाए और लोगों की जान पे बना है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि कंपल्सरी लाइसेंस इशू करके जो ओरिजिनल कंपनी है उसके अलावा 10 कंपनियों को लाइसेंस दे सकती है, भाई आप भी बनाइए। लेकिन गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर कि उनके पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है नहीं, ऐसा नहीं कि दे दिया, उनका पूरा देखेगी, उनका जीएमपी देखेगी, आईएसओ देखेगी, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखेगी, ऑडिट करेगी, तब जाके देगी। अगर वैक्सीन गलत बन गई तो आदमी के मतलब इट विल मतलब वैक्सीन से उल्टा सा हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से ज्यादा वो गवर्नमेंट देखेगी। नो लाइसेंस देते वक्त कंडीशन देखती है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है,
आपके पास कितना स्टाफ है, कितनी ऑडिट होती है आपकी, कितने टेक्निकल स्टाफ है, कितनी मशीन्स हैं, कितने रेफ्रिजरेशन पॉइंट्स हैं, सब कुछ देखती हो। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी Yes. मेडिकल कंपनी अपना प्लांट बनाती है तो उसको पूरा प्रॉपर ऑडिट करा के इसको परमिशन लेके काम करना होता है। Yes. Yes. तो उसमें कोई Sir, issue I नहीं Thank you, also have sir. a question. है। हाँ, Yes. Yes. सर Yes, अभी और जो लेटेस्ट yes. में डीआरडीओ ने हाँ, सर जो मेडिसिन लाई थी सर 2 DG सर, उसमें जो डॉक्टर रेड्डीज उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो सर उसमें जो आईपी होगी सर, क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी डॉक्टर रेड्डी और नहीं नहीं नहीं, डीआरडीओ को, कि दोनों को मिलेगी? उसमें आईपी डीआरडीओ के पास है। उन्होंने, क्योंकि डीआरडीओ के पास मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा सेटअप नहीं होगा, तो उन्होंने यस सर। इनको डॉक्टर रेड्डीज को बोला होगा कि भाई आप इसको बना के मार्केट में लाइए। तो सर उनको हर है ना? प्रोडक्ट पे पैसा मिलेगा कि मतलब एक पूरा होलसम मिल जाएगा कि वो मतलब आपको वो दे वो दिया? वो उन्होंने क्या कंडीशन रखी है उनको पता होगा, लेकिन मैंने अभी इसको गो थ्रू हुआ हूँ। लेकिन वो जनरली क्या होता है, जितना प्रोडक्शन होता है उसके प्रोपोर्शनेट में पैसा रॉयल्टी मिलती है। Yes. ओके ओके, थैंक यू। So, Now, Ans, we moving have a towards the end question. of the session, Yes, yes. Ans, I think one question in the chat box we have. So I read out. The question is that can we copyright of any PowerPoint presentation, under which category we can go through? You can it's a literary work, no? It's presentation of information. You can copyright because you have Yes. created a sequence. Okay, which point will come first, which point will, and you have modified it to some extent. Okay, how it should be written, how it should be presented. So it can be protected under literary work, Yes. presentation of information. Okay. Hope you got the answer of the question. So, Ans, now we proceed. Hello, sir. I have one question. Yes, sir. Yeah, sir. Actually, sometime we are having innovation, and I think we are not able to decide whether we should go for the Indian patent or for the international patent. So, what we should consider? Actually, first of all, we have to check whether our invention can be properly commercialized at large scale. Because if you are filing patent in USA, till grant it may cost you around 2.5 lakh, 2.5 lakh. So investing this much money, we have to think twice. Okay. And regarding enforcement, if you are filing patent in Australia, New Zealand, USA, you have to enforce there. अगर वहां पर कोई कॉपी करता है तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो वहां की एनफोर्समेंट एजेंसी आपको हायर करनी पड़ेगी। तो जो भी पेटेंट हम लोग फाइल करते हैं बाहर या इंडिया में, तो ये देखते हैं कि हमारी अप्रोच कितनी है, हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में तो आपको पता है, ठीक है, एक हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाल दी, रिट डाल दी। यूएस में आपको एक पिटिशन डालने के लिए लाखों, 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वहां पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, वहां के एडवोकेट पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो वहां जनरली फॉरेन पेटेंट्स कंपनीज डालती, या अगर आप पेटेंट डालते हैं तो आपको श्योर होना चाहिए कि यार ये पेटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी इसको ले लेगी बात, तो वो स्ट्रेटेजी पे काम करना है, क्योंकि कॉस्टिंग रोल इज वेरी हाई। Great. Sir, one question from my side. So what is exactly meaning of international patent? People are saying I have received the international patent. So what is that exactly meaning of international? There is no concept of international patent. It's a jargon, because क्या होता है ना कि आप जब पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपको कुछ टाइम पीरियड मिलता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज में आप पेटेंट फाइल कर सकते हो पर्टिकुलर डेट तक। तो कुछ लोग पीसीटी एप्लीकेशन को इंटरनेशनल पेटेंट बोल देते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट इज रॉन्ग, क्योंकि हर नॉट दैट मच इन्वेंटिव, तो इट्स अ जुरिडिक्शन बेस्ड। अगर इंडियन पेटेंट तो उसकी वैल्यू इंडिया में है, उसको बाहर कोई भी कॉपी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप इंटरनेशनल पेटेंट इज ए मिथ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हर कंट्री में जब तक आपका पेटेंट नहीं होगा तब तक आपको इंटरनेशनल पेटेंट बोल नहीं सकते, और कुछ कंट्री तो अभी भी WTO के मेंबर नहीं है तो पेटेंट को मानते ही नहीं है। तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड पेटेंट, बट ये है कि पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन को कुछ लोग इंटरनेशनल पेटेंट बोलते हैं, जो जस्ट एक चैनल है आपको दूसरी तरफ जाने का, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ और मेडिकल का फॉर्म भर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेडिकल क्लियर कर गया, तो उसके लिए मेरे को एक एग्जाम देके उसको क्वालिफाई, तो वो एक, और मैं मेडिकल की तैयारी करके मैं कहूँ लोगों से भाई मैं डॉक्टर बन गया, तो वो एक मिथ थोड़ा सा हो जाता है, जो जनरली स्लिप ऑफ टंग या फिर एक लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या है, लोग बोल देते हैं सुन के।
तो वो उनका भी फॉल्ट नहीं है, ये सब होता है। सर आवाज नहीं आ रहा सर आपका, इरशाद सर आप अनम्यूट कीजिए। So अगर कोई WIPO के थ्रू कराता है तो दैट्स लाइक वर्ल्ड नहीं, तो- इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO के प्लेटफॉर्म कि वहां से आपको टाइम पीरियड ज्यादा मिल जाता है हर कंट्री में एंटर करने के लिए। यस सपोज कीजिए मैंने कि ये इंक पैड बनाया अपनी स्किल, ठीक है, ये इंडिया में इसका पेटेंट करा लिया। अब 12 मेरे को क्या चाहिए, मुझे पता नहीं जिम्बाब्वे में कितना मार्केट है, अफ्रीका में कितना मार्केट है, यूएई में कितना मार्केट है, तो मुझे टाइम पीरियड चाहिए ताकि मैं उस कंट्री में फाइल कर सकूं। यस मुझे को स्टडी करना है कि यार यूएई में कितना चल सकता है, जिम्बाब्वे में कितना चल सकता है, ब्राजील में कितना चल सकता है। तो वाइपो की एप्लीकेशन मुझे टाइम पीरियड बढ़ा के देती है। अदरवाइज मुझे इंडियन एप्लीकेशन के 12 मंथ के अंदर अंदर आपको दूसरे कंट्री पेटेंट फाइल करना है। लेकिन अगर आप वाइपो के थ्रू जाते हो तो आपको 19 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ कितना पोटेंशियल मार्केट है। मैंने पेटेंट में तो 10 लाख खर्च कर दिए, लेकिन मैंने वो कस्टमर इंडिया में क्या करूँगा 10 लाख खर्च। जिलेट मैक 3 प्रोडक्ट है, हर कंट्री में चल रहा है लगभग। तो जिलेट ने सब जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पहले स्टडी किया कि यार ये मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पर कितने लोग शेविंग करते हैं, कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ, तो सारा स्टडी करके वहाँ पेटेंट को क्योंकि जिलेट का जो प्रोडक्ट आपको इंडिया में मिलेगा हो सकता है आपको यूएस में अलग वर्जन मिले उसका। तो ये मार्केट पेटेंट को मार्केटिंग के साथ जोड़ा जा सकता है कि कैसे पेटेंट जनरली बनाता है इंडस्ट्री के लिए कि इंडस्ट्री वाले आए इन्वेंशन मार्केट। लेकिन अभी हम लोग रिसर्च वाले भी काफी लोग पेटेंट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च वालों को शायद इतना आइडिया नहीं होता कि मार्केट कैसे करना है इसको। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैप जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर। यस सर आई वन मोर क्वेश्चन इफ यू अलाउ प्लीज। हाँ सर प्लीज। सर जैसे सर मान लो कोई हमारा डिजाइन होता है, डिजाइन को हम रजिस्टर करते हैं, ठीक है, in one case, and in second case suppose we are having some technical innovation, so sir are both the patent design patent में हमारा आएगा या innovation ही patent में आएगा? और ये देखो उसमें जैसे कि आपका ये आपका स्टैम्प पैड है, तो इसको अपन देखते हैं। तो इसमें देखिए आप इसका जो पर्टिकुलर जैसे यहाँ पर देखिए कर्व दे रखा है या पर्टिकुलर यहाँ कट दे रखा है, तो ये पूरा डिजाइन हो सकता है। लेकिन जो इसका जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है जिससे बाहर आके वापस ये बिल्कुल सही जगह पोजीशन हो रहा है, ये मैकेनिज्म आपका जो ये पेटेंट है। तो पेटेंट क्या होगा, इन्वेंशन क्या है, ये स्प्रिंग मैकेनिज्म जो इसको बाहर की तरफ लाके बिल्कुल पोजीशन ताकि सही जगह इंक जा सके और इसके अलाइनमेंट की। बाकी जो शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन है बाहर वाला, ये आपका, क्योंकि मैं भी आप 1 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट 1 सेकंड। अब ये दोनों इंक पैड मेरे पास अवेलेबल है, दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है। इसमें प्रेस करके आपको इंक सीधे इसमें भी प्रेस करना पड़ता है, लेकिन दोनों का शेप डिफरेंट है। देखिए आप कोई भी किसी से बोल सकते हो और बड़ा वाला ले आना है, ब्लू वाला ले, तो आइडेंटिफाई कर लेगा। इसी तरह से आपका ये पंचिंग मशीन होती है, दोनों का काम एक ही है। ये अलग बात है कि थोड़ा बड़े, इसका शायद गैप भी बराबर है लेकिन इसकी साइज बड़ी है, तो ये डिजाइन में आ जाता है क्योंकि शेप इज डिफरेंट, फंक्शन इज सेम। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने को क्या। अब जैसे पहले जो स्पेक्टिकल्स आते थे नॉर्मल आते थे, आजकल ये स्ट्रेचिंग वाले आ रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेचिंग मैकेनिज्म है ये पेटेंट कर सकते हैं। यस ठीक है सर। तो Anshul, proceed please. Yes, sir. Now moving towards the end of the session, I request to Dr. D.K. Kohli sir to please present certificate of appreciation to our guests and then to conclude today's session by delivering vote of thanks. Yes. Sir, good afternoon, sir. So from our Sagar Institute of Research and Technology Institution Innovation thank Council, you sir for this. Please accept this certificate as a token of love. Thank you sir. Thank you. And sir, thank you so much, sir, for your wonderful session you have conducted here. You have given here your a lot of time, as well as, sir, I think your delivery was very, very fine. You have cleared each and every step to the students, and you have depicted different types of examples, such like of the vertical parking of the vehicle, as well as the example, the press that you have given automatically, it can be used, can save the harm, and the
dropping of the mobile, how we can save, we can make it safe. So we have given different example: trademark, copyright, patent, design, as well as the international, national patents. We have also, sir, cleared the doubts or students. They have also interacted with you. So I said, in overall, sir, the session was very, very nice. It was very, very interesting session. And I think, sir, most of the students, they have interacted with you. They definitely will be benefited. Sir, actually, we are dealing with our Institution Innovation Council here. And we are working on the different themes like innovation, then startup, entrepreneurship, and IPR. And collectively, our team, including 5 to 6 members as the coordinator, and remaining members, which are the 6 to 7 members as the member, including 40 students. We are having a team and we are collectively working to move in the direction of IPR, innovation, startup, etc. So, sir, we are organizing such a program so that our students should move in that direction. They should involve in such atmosphere so that they should engage themselves, including the theoretical part, etc. They should also involve the practical part as well as move in the direction, because sir, IPR is very, very important. If we are having the more number of IPR from our country, definitely we can earn more money, because in the COVID time we have seen that if we are not having the patent of the different technology, we are giving money to the other countries. So it is a very need. India is lacking in that. So I think, sir, this session was very, very nice. So because from our institute side, we are having the 5 institute, 2 universities, at one is Indore and one at Bhopal, and our the key inspiration or motivational person, our engineer Sanjay Agarwal sir. So from him side, we are having one vice president, Dr. Prashant Jain sir. So I thank you, so sir, also. And for our group, which is called the SAGE group, there are 2 dynamic executive directors, Ms. Shivani Agarwal ji and Ms. Sakshi Agarwal ji. They are working very hard to move the group move forward very fast and making such a good atmosphere. I also give thanks to our director, Dr. Rajesh Srivastav sir, and the whole team of the IIC Mechanical Engineering Department, all the faculty members, all the staff members. Particularly thanks to Dr. Saz sir to organize this session. I also want to congratulate to Mr. Ans Malviya and Nishi Misra, and thanks to all. I couldn't take the name of the person, and for organizing such a very good session, very good session. We will be connected together and we will meet you again, sir. Thank you so much to all for making this program successful. Thanks to all. Thank you, sir. मेरे को स्टूडेंट्स का भी थोड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ जो unmute yourself. Yes sir, please. मैं कह रहा हूँ थोड़ा स्टूडेंट्स को भी मैं काफी थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मैं आज सोच रहा था कम बोलूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी 2-3 हफ्ते में मुझे रिकवर हुए, तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम. थोड़ा एनर्जी थोड़ा सा बचा के रखना है. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके सर, मैं लीव कर सकता हूँ अभी? Yeah. Ans, please proceed to end. कर दो office. Yes, sir. Okay, sir. So that's the end of today's session. I would like to thank to audience and all faculty members for such a wonderful session, and thank you. So thank you, Vikas sir. Thank you, sir. Thank you so much. बिल्कुल फिर मुलाकात करेंगे बिल्कुल. We will talk to you later. Yes sir, definitely. So now the officially end of this session. Thank you so much everyone for coming and listen patiently. Definitely we will learn a lot about the IPR today. Thank you so much.